آج کی رات میں تمہارا کنوارا پن دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سفید چادر جو بیڈ پر بچھائی ہے نا، اس پر مجھے تمہارے خون کے دھبے چاہیے۔ اگر یہ سفید چادر لال نہیں ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں بہت گھبرائی تھی جب اس نے زور سے میری ماں نے زبردستی میرا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ کروا دیا۔ مجھے اس پر پورا شک تھا، اسی لیے آج کی رات میں اس کی اصلیت سبھی کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ جب میں نے سفید چادر بیڈ پر بچھائی تو یہ سفید چادر کو دیکھ کر عروج کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اسلم نے اسے بیڈ پر زور سے دھکا دیا اور اس کے لہنگے کو کھینچا اور اس کے اوپر جھکا۔ تم شہر کی لڑکی ہو اور مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں۔ کالج جانے والی لڑکیوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ تم تو کالج کے بہانے اپنے یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہو اور پتہ نہیں ان کے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کیا گل کھلاتی ہو، اور یقیناً تم بھی بالکل ایسا ہی کر چکی ہوگی۔ وہ تو مجھے بس گھورے جا رہی تھی۔ عروج مزاحمت کرتے رہی اور میں اسے سفید چادر پر لٹائے جھٹکے سے اس کی نرم کمرے میں بہت خاموشی تھی اور بیڈ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس وقت وہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر لہنگا پھیلائے اس محل نما کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لگ تو بہت خوبصورت رہی تھی، لیکن اس کی قسمت اس کی خوبصورتی جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ عروج کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ لڑکی آج میری بیوی بن گئی اور اس کی معصومیت بھری خوبصورتی میرے جذبات کو چھیڑ رہی تھی، لیکن میں اپنے جذبات اس پر بالکل بھی نچھاور نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا نکاح میری خواہش سے نہیں ہوا تھا بلکہ میری ماں اور پھپھو نے مل کر زبردستی کروایا تھا۔ اور آج یہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ کمرے میں بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی تو میں کمرے میں بڑے جوش کے ساتھ داخل ہوا۔ میرے اس طرح کے جوش کو دیکھ کر وہ کچھ سہم سی گئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے بازوؤں کو دبوچتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا اور اسے کہنے لگا، یہ جو تمہاری ماں نے یوں اچانک تمہاری شادی کروائی ہے، وہ بھی میرے ساتھ، اگر میری ماں مجھے اتنا زیادہ بلیک میل نہ کرتی تو تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ تم جیسی لڑکیوں کی اصلیت کون نہیں جانتا؟ خود تم میرے خاندان کی عزت ہو، لیکن تم جیسی لڑکیاں عزت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب مجھے خود جلدی سے بتا دو کہ آخر تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ تم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جو تمہاری ماں کو یوں اچانک تمہاری شادی کرنے کی ضرورت محسوس ہو گئی؟ وہ جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اسلم، وہ ماں نے بس ویسے ہی آپ کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی اور اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اسے کچا چبا جاتا۔ میں تم سے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دو۔ کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے آئی ہو؟ سچ سچ بتا دو۔ ایسا تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو تمہاری ماں نے اتنی کم عمر میں ہی تمہارا میرے ساتھ نکاح کر دیا؟ تم چھوٹی سی لڑکی ہو، ابھی تمہاری کچی عمر ہے۔ تم تو صرف 18 سال کی ہو اور اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری ماں کو کیا اتنی ضرورت پڑ گئی کہ اچانک میرے ساتھ شادی کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ میں تم سے پورے 17 سال بڑا ہوں۔ میری عمر تو 35 سال ہے، اور 35 سالہ مرد کے ساتھ تمہاری ماں نے اتنی آسانی سے کیسے نکاح کر دیا؟ تم مجھ سے آدھی عمر کی ہو، پھر تمہاری ماں نے کیوں میرے ساتھ تمہاری شادی کروائی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب کی بار میں اسے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ میرا یقین کریں، میرا کردار غلط نہیں ہے۔ اب کی بار دوبارہ سے عروج نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ تم اچھی طرح سے مجھ سے واقف ہو کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ اگر مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ مجھ سے پیچھے ہونے لگی۔ پلیز، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی میں اسے غصے سے کہنے لگا، دیکھو، مجھے میری ماں نے منع کیا ہے کہ میں آج کی رات کوئی بھی زبردستی نہ کروں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم ابھی چھوٹی ہو، کم عمر ہو، تمہارے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کروں۔ تمہیں بخش دوں، ابھی تمہیں کچھ وقت دے دوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے تمہیں وقت دوں۔ مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے تم ماں بیٹی نے، میری ماں کو بھی تم لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ چلو، میری ماں تو بہت بھولی ہے، وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے۔ صرف میری ماں کی وجہ سے ہی تم یہاں پر کھڑی ہو۔ وہ تو تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں، اسی لیے تمہاری ماں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ تو ایسا تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں میرے پلو سے باندھ دیا ہے۔ وہ تو مجھے ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی پاکیزہ ہو۔ تمہاری پاک دامنی کا ثبوت تو مجھے آج رات مل جائے گا، لیکن اگر تم پاکیزہ نہ نکلی یا تم نے اپنے آپ کو پہلے کسی اور مرد کے حوالے کیا ہوا تو پھر دیکھنا میں تمہارے وجود کا کیا حشر کروں گا۔ تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اسلم پھر تمہیں اپنی اصلیت دکھائے گا۔ اسلم سے شادی کرنے کا انجام تمہیں پتہ چلے گا۔ میں تم سے ابھی بھی آرام سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دو کہ اپنے یاروں کے ساتھ تم نے بھی جا کر ہوٹلوں میں اپنی راتیں رنگین کی ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ اب کی بار میں چلا رہا تھا۔ اس خاموش کمرے میں میری آواز اونچی ہوئی تھی۔
मैं गुस्से से इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछने लगा। मेरी जोरदार आवाज सुनते ही वो कांप सी गई थी और अपनी सफाई में रोते हुए मुझसे कह रही थी, असलम प्लीज आप मेरा भरोसा करें, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दें प्लीज। वो फूट फूट कर रो रही थी और वो भी अब की बार गुस्से से चिल्लाई थी, लेकिन बाहर से जितना भी गुस्सा दिखा रही थी, अंदर से दिल इसका सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। चलो ठीक है मेरी जान, अभी पता चल जाएगा। तुम मुझे खुद तो कुछ भी नहीं बताओगी। ये कहकर मैंने जो सेज गुलाब के फूलों की पत्तियों से सजाया गया था, इस खूबसूरत सेज को उतार के दूर फेंक दिया। तुम्हें मालूम है ना कि औरत पाकिज़ा ना हो तो मर्द को फौरन पता चल जाता है। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा। इसके बाद जो अलमारी से चीज निकाली तो इसको देखकर तो अरूज के तन बदन में आग लग गई। असलम तुम कितने जाहिल हो। मैं तुम्हारी इसी जहालत की वजह से तुम्हारे साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। तुम्हें औरत की पाकीज़गी से मतलब होता है। मैं आपको अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, ना ही मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम करूंगी। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त चाहिए। वो घबराते हुए बोली, देखो वक्त तुम्हें शादी से 1 हफ्ते पहले भी मिला है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी हुई है। 1 हफ्ते में सोच लेती, बहाने बना लेती कि मैंने शोहर को क्या जवाब देना है, कि मैंने क्यों अपना आप किसी और मर्द के हवाले किया। मैं इसके जबड़े को दबोचता हुआ बोला था तो अरूज इसके हाथ को पीछे करने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे मैं अरूज को बेड की तरफ धक्का दे चुका था। अरूज उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छोटी उम्र की लड़की भला कहाँ 6 फुट के मर्द को अपने ऊपर से हटा सकती थी। मैं अपनी कमीज के बटन खोलता हुआ उतार कर दूर उछाल चुका था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, शर्म नहीं आती मेरे सामने अपनी शर्ट उतारते हुए। वो इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। वाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम तो मुझे गाँव का जाहिल समझती हो ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जाहिलियत क्या होती है। मुझे तो गांव की लड़की चाहिए थी, तुम जैसी नहीं चाहिए थी। अरूज ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। बस भी कर दें, जो आपके मुंह में आ रहा है बकवास किए जा रहे हैं। खबरदार जो आपने दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की तो और मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं इस रिश्ते को अभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं अभी इसको कबूल करूंगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो गुस्से में बोले जा रही थी जब इसकी कमर की तरफ मेरे हाथ गए। जैसे ही जिप खुलने की आवाज आई तो वो जी जान से कपकपाई। इसकी कंधे से कुर्ती को हटाता हुआ अपने दांत वहां पर काट चुका था। अरूज का दिल तो यूं था जैसे अभी फट के बाहर आ जाएगा। वो कमर पर नाखून गाड़ते हुए मुझे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस इसके ऊपर जबरदस्ती चलाता गया। बस मुझे तुम्हारी पाक दामनी का सबूत चाहिए। मुझे देखना है कि तुम कितनी पाकीज़ा हो। अरूज मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी इस तरह की जबरदस्ती वाली हरकत पर आग बगोला हो गई थी। अचानक ही मैंने एक झटके से इसके लहंगों को खींचकर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरी माँ भी कमरे में मौजूद थी। माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई, कमरे को चारों तरफ देखने लगी। मुझे याद था कि जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी कि मुझे ये एकदम बेहोशी तारी हो गई थी, लेकिन खुद को अस्पताल में पाकर मैं हैरान हो गई। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरी माँ की आवाज आई, तुम ठीक तो हो ना अरूज मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कौन तुमसे शादी करेगा? मेरी माँ रोते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन मुझे माँ की बातें समझ में नहीं आ रही थी। माँ आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे तो आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम नादान हो मेरी बच्ची, लेकिन कौन इस हकीकत को मानेगा? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं चाहिए हमें कोई भी प्रॉपर्टी। मैं हिस्से में बस तेरी इज्जत की हिफाजत करना चाहती हूँ, लेकिन तू इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। अपना मुंह बंद रखना, किसी के भी आगे जुबान नहीं खोलनी होगी। मैं किसी तरह से तेरा रिश्ता तय कर दूंगी, मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा। चल जल्दी से ठीक हो जा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं अपनी माँ को रोता हुआ देखकर परेशानी के आलिम में अपनी माँ को पूछने लगी, माँ बाबा के मरने के बाद इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे और हम अपना घर क्यों छोड़ेंगे? माँ मेरी बातें सुनकर कहने लगी, बेटी अभी तू बहुत मासूम है, तुझमें तो अभी भी बचपना है, लेकिन मैं तेरा शिकार होते हुए नहीं देख सकती। तू अभी इन बातों को नहीं समझेगी। पता नहीं मेरी माँ बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे माँ की बातें समझ नहीं आ रही थी। यूं अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर आ गई और माँ ने यहाँ पर आकर अपने भाई से अकेले में बात करने लगी। तब तक मैं अपने कमरे में बैठी माँ का इंतजार करने लगी और थोड़े ही वक्त के बाद माँ आकर मुझसे कहने लगी कि 8 दिनों में तुम्हारा निकाह असलम के साथ होने वाला है, तुम इस निकाह के लिए तैयार रहना। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। नहीं माँ, मैं हरगिज असलम के साथ शादी नहीं करूंगी। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल जाहिल है। मैं ये निकाह क्या इसे देखना भी पसंद नहीं करती। ये सुनना था कि अम्मा ने मेरा गाल सुर्ख कर दिया था और कहने लगी, अगर तुम ये निकाह नहीं करोगी तो तुम्हारे करतूत सबके सामने आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए माँ, लेकिन मैं असलम से निकाह नहीं करूंगी। मेरा ये कहना था कि माँ का हाथ का छाप मेरे गालों पर छूट गया था। अब के बाद मैं हैरान होती हुई अपनी माँ को देखा था, जिस माँ ने आज तक मुझे आंखें भी नहीं दिखाई थी। आज इन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं माँ को हैरान नजरों से देख रही थी, जबकि मेरी माँ की आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे।
तभी असलम की माँ मेरे पास आई, आज मुझे समझाने लगी। तभी असलम की माँ मेरे पास आई, आज मुझे समझाने लगी, देखो बेटा तुम्हें ये निकाह तो करना ही होगा, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मुझे तो इनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने असलम की माँ को कोई जवाब नहीं दिया और भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तब वो सीढ़ियों से आया और मोबाइल देखता हुआ आ रहा था। जब सीढ़ियों पर से टकराई तो नीचे गिरने ही वाली थी कि असलम ने मुझे जल्दी से मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे अपने करीब खींचा था। असलम का खींचना इतना तेज था कि मैं इसके सीने से जा टकराई थी। वो मुझे गुस्से से देखता रह गया। मैं इसकी बाहों की तरफ से निकलकर कमरे में चली गई। कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ क्या करने वाली थी, क्यों वो मेरी शादी इससे करना चाहती थी, वो भी मुझसे बड़े आदमी के साथ। ये सोचकर ही मेरा सर फटा जा रहा था। पता नहीं क्यों इन बातों का कुछ और अंदेशा हो रहा था। माँ तो अब फैसला कर चुकी थी कि मेरी शादी होकर ही रहेगी। इस शादी के लिए असलम को मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। शाम का वक्त था, सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। तो ये मेरे मामू यानी असलम के अब्बा कहने लगे, असलम हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है तुम्हारे हवाले से। असलम सवालिया नजरों से मामू की तरफ देख रहा था और पूछा, किस बारे में बाबा? तो वो कहने लगे, हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। ये सुनना था कि असलम हैरान हो गया, मेरी शादी किससे और आपने मुझे बताया नहीं? मामू कहने लगे, इसमें बताने वाली क्या बात है, इस घर में जो भी फैसला होता है वो हम ही करते हैं और सभी को इस फैसले को मानना होगा। अब असलम चुप बैठे हुए था। मामू जो भी फैसला करता था वो कोई भी इंकार नहीं कर सकता था। असलम मामू का मुंह बोला बेटा था, क्योंकि मामू का दोस्त और इनकी बीवी कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। इसलिए असलम को बचपन से ही इन दोनों ने मिलकर असलम को पाल पोस कर बड़ा किया था। मामू की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए असलम को ही अपना बेटा समझकर अपने घर में रख लिया था। और ऐसे में शादी का फैसला असलम पर किस तूफान की तरह बरसा था। असलम 35 साल का हो चुका था। इतने साल होकर भी असलम ने शादी नहीं की थी। अब जब मामू ने शादी का फैसला ले ही लिया तो असलम को मानना ही था, लेकिन असलम किसी सूरत इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि उम्रों का फर्क इसे बार बार याद दिला रहा था। अरूज तो 17 साल की मासूम लड़की और मैं 35 साल का मर्द, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी तो अरूज ने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, फिर कैसे आप लोग इसके साथ मेरा निकाह कर सकते हैं? असलम अब और कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। बस अब मैंने कह दिया ना कि अगले जुम्मे को तुम्हारा अरूज के साथ निकाह है, तो मेरा ये फैसला अटल है। बाबा अपने कमरे में चले गए थे। मैं मेरी फुप्पो और माँ को देखने लगा। मेरी माँ ने तो मुझसे नजरें फेर ली, वो भी तो मजबूर थी बाबा के फैसले के आगे। तभी मेरी फुप्पो कहने लगी, अरे तुम तो ऐसे गुस्सा दिखा रहे हो जैसे भाई किसी राह चलते को उठाकर तुमसे ब्याने वाले हैं। अरूज मेरी बेटी है, घर बैठे तुम्हें इतनी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल रही है, लेकिन तुम हो इस रिश्ते को मानने को तैयार ही नहीं। तुम्हारी तो उम्र निकलती जा रही है, तुम तो आधे से ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। 35 साल है उम्र तुम्हारी और घर बैठे ही कच्ची उम्र वाली का रिश्ता मिला है। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय तुम यहाँ पर बहस करने बैठ गए हो। उठो चलो जाओ, शाबाश, जल्दी से तैयारियां शुरू करो। मैं फुप्पो की बातें सुनकर नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अब मुझे तो इन माँ बेटी के बीच कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। अब मैं अपने बाबा के फैसले से तो पीछे नहीं हट सकता था। बाबा का फैसला मेरे सर आंखों पर था। इनके एहसान मुझ पर इतने हैं, मैं पूरी जिंदगी इनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। इसीलिए मैं इस निकाह के लिए मान गया और ठीक 8 दिनों के बाद हमारा निकाह था। पूरी हवेली में जोरों शोर से तैयारियां हो रही थी। आज मेहंदी थी और मेहंदी वाले जोड़े में तो अरूज बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत मासूम भी लग रही थी, लेकिन वो इसकी मासूमियत और खूबसूरती पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब मैं फैसला कर चुका था कि मुझे अरूज के साथ क्या करना है। और अगले दिन हमारा निकाह भी हो गया। और यूं अरूज मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठी थी। मैं लाउंज में बैठा सिगरेट के कश उड़ा रहा था कि तभी मेरी माँ आ गई। असलम, तुम शादी की रात इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आज ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम यहाँ बाहर बैठे हुए हो। और नहीं तो मैं क्या करूंगा? तुम लोगों ने तो मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी है जो मेरे वजूद को भी संभाल ना पाएगी। मेरा ये कहना था कि माँ कहने लगी, खबरदार, ऐसा सोचा भी तो तुम्हारी दुल्हन अभी बहुत छोटी है, मासूम सी बच्ची है। तुम्हारी शिद्दतों को और वजूद को वो लड़की हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखना और थोड़ा नरमी से पेश आना। क्यों माँ, क्यों मैं इस लड़की से नरमी से पेश आऊं? अब तो मेरी शादी इसके साथ हो गई है। इतनी बच्ची थी तो इतनी जल्दी शादी मुझसे क्यों की? मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि वो बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात ही नहीं मानी। बस असलम, कितना बोलोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? चलो जाओ अब अपने कमरे में, बेचारी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। और हाँ, मेरी बातें याद रखना और अरूज से नरमी से पेश आना। मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। माँ की बातें सुनकर तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि आज की रात अरूज और इसकी माँ का पर्दाफाश करना है। ये सोचता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। जोर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज को सुनकर
अरूज कुछ डर गई थी। मैं अरूज के करीब गया और इसे बाजू से पकड़कर साइड में खड़ा किया। तभी अलमारी के करीब गया और इसके अंदर से सफेद चादर बाहर निकाली और वो बेड पर लाकर बिछा दी। मेरी इस हरकतों को अरूज खामोश खड़ी देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसकी तरफ देखता हुआ बोला। तुम माँ बेटी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पाकीज़गी का सबूत चाहता हूँ, इसलिए सफेद चादर ही बिछाई है और यही एक सबूत है। तुम साबित कर सकती हो कि तुम कुंवारी लड़की हो। असलम, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो कमरे में आते ही मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने कभी भी नहीं सोचा था आप मेरी पाकीज़गी का सबूत चाहते हैं। अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और आप मेरे शोहर हैं और मैं अभी इस रिश्ते को कायम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहती हूँ। इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ तो तुम तैयार हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ। मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारी पाकीज़गी का सबूत चाहिए, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में। मेरी बातें सुनकर अरूज की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अच्छी तरह बेड पर सफेद चादर बिछा दी थी और अपने शर्ट के बटन खोलता अरूज को अपने करीब किया। अरूज तो पूरी तरह से सक रही थी क्योंकि वो तो बहुत, मुझे इस पर जरा भी रहम नहीं आया था। अब मैंने इसे जोर से बेड पर धक्का दिया और मैं इसके ऊपर झुका था। कमरे में बहुत खामोशी थी और बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। इस वक्त अरूज दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इस नाजुक सी लड़की के ऊपर जब मैं झुका तो इसकी सिसकियां निकल गई थी और मैं पूरे जोश से इसके नशे में खोता चला गया था। अरूज मुझे दोनों हाथों से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी चौड़ी जिसामत पर इस लड़की की ताकत एक मक्खी के बराबर थी। असलम प्लीज थोड़ा धीरे। मैं तो पूरे जोश के साथ अरूज को, जब मैं फ्री हुआ तो फौरन सफेद चादर देखने लगा। सफेद चादर को देखते ही मेरी चीखें निकल गई थी। मैं इस हकीकत पर साख्त होकर रह गया था, जब अरूज से पीछे हुआ तो अरूज बेड पर बेहोश पड़ी थी और जब सफेद चादर देखा तो सफेद चादर पूरी खून से लथपथ हो चुकी थी और अभी भी अरूज का खून बह रहा था। ये देखकर तो मैं डर गई और फौरन से मैंने कपड़े तब्दील किए और अरूज को भी कपड़े पहना दिए, लेकिन अरूज अभी भी होश में नहीं आई थी, इसलिए मैं फौरन बाहर भागा। अब मैं डरा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ को जब ये सब बताया तो माँ भी फौरन अरूज की तरफ भाग गई और अरूज को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाबा और फुप्पो दोनों भी कमरे में आ गए थे। फुप्पो तो अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में देखकर इनके होश ही उड़ गए थे। वो इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। अरूज को इसी हालत में देखकर मेरे तो गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसे में इसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया और इस वक्त मैं ही गाड़ी चला रहा था। रात के 3 बजे इस वक्त अरूज को लेकर अस्पताल ले जा रहे थे। फुप्पो कह रही थी, मेरी नाजुक सी बच्ची के साथ तुमने क्या कर दिया? मैं अभी इन्हें जवाब देने के काबिल भी नहीं था क्योंकि अरूज की पाकीज़गी का सबूत मुझे मिल चुका था। वो सच में ही कुंवारी थी। इसकी उम्र कम होने की वजह से मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि फुप्पो ने अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों की थी। यही सोचते हुए मैं बाहर खड़ा हुआ था। मेरी माँ भी फुप्पो भी यहीं पर खड़े हुए थे। फुप्पो मुझे देखते हुए बोली, मेरी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे से शादी कर दी थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो थोड़े दिन भी सब्र किए बगैर इसके साथ जबरदस्ती कर ली, इसलिए मेरी बेटी आज इस हालत में है। मुझे अब इनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। मैं अब इनसे पूछने लगा कि अगर आपको पहले से पता था कि आपकी बेटी के साथ ये सब होने वाला है तो आपने अपनी नाजुक बेटी की शादी मुझसे क्यों की थी? फुप्पो ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फुप्पो कहने लगी कि मेरे शोहर के इंतकाल के बाद हम घर में अकेले रहते थे। ऐसे में गांव के सरपंच ने इस पर बुरी नजर रख ली क्योंकि अरूज बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती को देखकर सरपंच इसको अपनी बीवी बनाना चाहता था। एक दिन अरूज को तेज बुखार था तो वो तेज बुखार में तप रही थी, इसलिए सीधा अस्पताल ले गई। वहां पर अरूज की तबीयत का सुनकर सरपंच भी वहां पर पहुंच गया और मुझसे कहने लगा कि मैं अरूज के साथ 1 महीने के अंदर अंदर निकाह करना चाहता हूँ, इसलिए जिस भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना और हाँ, अरूज का अच्छे से ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया और मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे गया था, इसीलिए मैं इसी पैसों में भाई के घर आ गई क्योंकि मैं हरगिज भी अपनी बेटी की शादी इससे नहीं कर सकती थी और जल्दी में कोई और फैसला भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब ये बात भाई को आकर बताई तो भाई ने ये फैसला किया कि वो अरूज की शादी तुमसे करेंगे। अरूज को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इसे तो शादी के हवाले से कुछ पता नहीं था। वो मैं थी जो इसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी और ऐसे में वो तुम्हारी बीवी बन गई थी। लेकिन तुमने क्या किया, इसके साथ एक ही रात में अस्पताल पहुंचा दिया। मैं फुप्पो के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान हो गया था। मुझे इस हकीकत का पता चलते ही मुझे अरूज पर बहुत अफसोस हुआ था। इतने में डॉक्टर बाहर आई और कहने लगी, शादी की रात का डर इनके दिल में बैठ गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। छोटी उम्र में अक्सर ऐसा केस हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे आगे ऐसी गलती ना हो। मरीज को थोड़े दिनों के लिए आराम की जरूरत है, इसलिए इन्हें अपने शोहर से दूर रखें। 1 माह बाद ये मिलाप कर सकते हैं। ये सुनना था क्या मुझे भी?
थोड़ा सुकून मिला था। मैंने अरूज के हवाले से बहुत गलत सोचा था। हकीकत जाने बगैर ही इसे नफरत से पेश आया था। अरूज होश में आ गई थी और इसे अस्पताल से लेकर घर जाने लगे। पूरे रास्ते हम खामोश ही थे, बस फुप्पो और अम्मी दोनों बातें कर रहे थे। अरूज पूरे रास्ते मुझे ही खामोशी से घूरे जा रही थी। मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जो इसके साथ किया था शायद वो माफी के भी लायक नहीं था। थोड़े वक्त के फासले पर हम घर पहुंच गए। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और अरूज भी मेरी माँ के कमरे में ही सोती थी। मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन मैंने अब अरूज से दूरी बना ली थी। लेकिन अरूज बड़े दिनों से मुझे देख रही थी। पता नहीं, शायद मुझसे कोई काम था इसे, लेकिन मैं अब इसे बात करके और मुश्किल में डालना नहीं चाहता था, इसलिए दूरी ही बनाए रखी। ऐसे ही 2 माह हो चुके थे। एक दिन कमरे में सो रहा था, किसी का हाथ मेरे लब पर टच हुआ तो मैं घबरा गया। जब लाइट ऑन करके देखा तो बिल्कुल मेरे करीब अरूज थी। अरूज, यहाँ क्यों आई हो? अरूज कहने लगी, क्यों मैं नहीं आ सकती? मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, निकाह में हूँ तुम्हारे और तुम मेरे शोहर हो। हक रखती हूँ मैं तुम्हारे कमरे में आने का और आपके करीब आने का भी हक रखती हूँ। ये कहकर अरूज मेरे गले लग गई। मैं अरूज को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अरूज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैंने भी इसे अपनी बाहों में जकड़ ली और इसे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो अरूज, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। पूरे हक से मेरे करीब आ सकते हैं। ये कहते मैंने जोर से इसे अपनी बाहों में लेने से पहले कहा कि तुम मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वरना तुम्हें फिर से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही वो शर्म से पानी पानी हो गई थी और आज पूरे हक से हमारा रिश्ता कायम हो चुका था।